ਓਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਸੀਓ ਪੀਆਰ ਆਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर द ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ, ਐਕਚੁਅਲ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, अपनी पूरी जर्नी शेयर कर देने। सो मेरे वालों और पूरी टीम वालों सुखमनी इमिग्रेशन दी थैंक यू सो मच विशाखा फॉर कमिंग ऑन हियर ऑन दिस चैनल, एंड दिस इज ए बिग चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं छोटी सी एक ब्रीफ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਰਮਾ basically by profession nurse ਨੇ, and she did her graduation as a nursing, BSc nursing from back home in India. And from there, she was working in Apollo Hospital. She was working in Apollo Hospital. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। then she came here ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਐਂਡ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੇ, ਪੈਲੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੈਰੈਂਟੋਲੋਜੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੈਲੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਕੇਅਰ। ਜੇ ਹਸਪਾਈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਰੈਂਟੋਲੋਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਈ ਗਲਤ ਬੋਲੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਰੈਂਟੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਰਸ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਐਨਕਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ। ਇੱਥੇ ਨਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਕੁਇਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕੋਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਲਪਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਸੈਲਪਿਪ ਦਾ ਔਰ ਪੀਟੀ, ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਐਨੀ ਟੈਸਟ। She selected CELPIP and she got a great score in CELPIP. And after she has 1 year of experience in Canada, she applied in CEC. So CEC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾਖਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਮਚ। एंड आई बिलीव आपके घर में बहुत लोग खुश हुए होंगे इस वक्त जान के कि आपका पीआर हो गया है। सो व्हाट इज योर रिएक्शन पीआर आने के बाद? हाउ इज द थिंग्स डिफरेंट नाउ? तो सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ये सब पूरा हुआ है। So I was like confused in the starting, but when I met you, I know like I will get like in the right pathway. So घर वाले भी सभी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि सबका ड्रीम होता है पीआर का एक सपना होता है सर। So I was very happy like when I received your call that I got the ECO PR. सो सभी खुश थे, घर वाले को फोन किया क्योंकि सब इंडिया में है, मैं इधर हूँ कनाडा में। सो आप अकेले हो यहाँ पर, राइट? कोई ब्रदर हाँ सिस्टर जी भी सर। नहीं है? नहीं सर, से आई वाज द फर्स्ट वन हु केम हियर। सो आपने तो एक लैंडमार्क एस्टेब्लिश कर लिया है कनाडा में, पीआर का। सो नेक्स्ट पीपल कैन फॉलो यू। यस सर। कैसा रहा तो मम्मी डैडी का रिएक्शन उनको जब पता लगा कि हमारी बेटी पीआर हो गई है? सभी खुश थे घर वाले कि दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि चलो कि कुछ डिसाइड किया तो एटलीस्ट उस पाथवे को हमने कंप्लीट किया। हम्म, क्योंकि सर अब नाउ डेज लाइक इमिग्रेशन चेंज हो रहा है बहुत सभी, ज्यादा। बहुत ज्यादा। इट्स वेरी हार्ड टू गेट पीआर, स्कोर इतना हाई जा रहा है, बट आई एम लकी लाइक आई वाज इन हेल्थ केयर, सो आपका सपोर्ट भी मिला। आपने फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इस जर्नी को लाइक बहुत स्मूथ बना दिया सर। क्योंकि फर्स्ट आई वाज नॉट लाइक श्योर लाइक एलिजिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि पीआर के लिए तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी एलिजिबिलिटी के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन भी लाइक इट्स वेरी हार्ड, कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे कौन से ना करे, कोई एक रह गया तो लाइक वही सर पीएफएल आ जाता है, कभी रिफ्यूजल्स आ जाते हैं। बट आई नो कि आपसे आपका सपोर्ट था, आपकी आपके पूरी आपके टीम केस का। में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज स्मूथ हाँ स्मूथ, जी, राइट? स्मूथ हम दिया। लोगों को, मुझे याद है कि यू गॉट अ इनविटेशन इन अगस्त 2025,
अक्टूबर एंड में हमने करीब करीब फाइल सबमिट की थी, एंड हाँ देन जी सर। दिसंबर यू गॉट द बायोमेट्रिक्स। हाँ जी सर। और उसके बाद फिर मार्च में ईसीओ हाँ पीआर, और फिर अभी। पहले पोर्टल वन रिक्वेस्ट, पोर्टल टू हम्म। रिक्वेस्ट, एंड देन ईसीओ पीआर। सो लेस हाँ, सो वो देन। टाइम लाइन तो हाँ जो भी चलता है वो तो है ही, बट बट टाइमलाइन आपके केस में बट ठीक थी, बट टाइमलाइन 5 महीने ठीक था लगे, हाँ। 5 months, एंड यू हम्म। गॉट योर पीआर कार्ड। 5 महीने में पीआर पूरा कार्ड, पीआर यस। कार्ड तक। सो हाँ। प्रोसेस टाइमलाइन के हिसाब से तो बहुत सही रहा, बिकॉज दे से इवन आईआरसीसी से द सेम थिंग, कि 6 महीने हम्म। के अंदर अंदर मोस्टली हम लोग सारे केसेस कंप्लीट कर देते हैं। एंड इन योर केस इट टुक लाइक 5 months, तो 5 महीने फाइव लगे। मंथ्स यस। हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया पूरी जब ये स्टार्टिंग करी, जब ये प्रोसेस शुरू किया, क्या चैलेंज लगा, क्या? सबसे पहले तो यही कि इमिग्रेशन कंसल्ट की सलाह ले या ना ले, हम्म। क्योंकि और वैसे अब कि इतने सारे किसके पास जाए, क्योंकि हम्म। नॉलेजेबल, लाइक नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? विच इज ट्रू। सो वही कि किसके पास जाए, कहाँ से करें। सो देन आई सो योर वीडियोस इन द हम्म। यूट्यूब, आई एम फॉलोइंग यू। सो वहां हम्म। पे मैंने देखा कि हाँ, लाइक आपकी वीडियो से कुछ नॉलेज तो हमें मिलती है। देन आई, लाइक मैंने आपसे मीटिंग की, देन आई डिसाइडेड यस यू आर द राइट पर्सन, कि हाँ जिसके पास मैं अपनी फाइल लगवा सकती हूँ, जिसमें मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा ड्यूरिंग किसी भी स्टेप्स में, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आपने मीटिंग के टाइम पूरे हमें, लाइक मुझे बता दिए थे कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होगी उस टाइम पे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है। तो लाइक इट्स अ वेरी स्मूथ जर्नी, लाइक व्हेन आई मेट यू आफ्टर दैट। या। मेन, आई वुड ऑलवेज से कि मेन जो प्रोसेस है ना, विच इज डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से। क्योंकि हम्म। होता क्या है कि देखो, वीजा ऑफिसर भी आपकी तरह मेरी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, कोई मशीन नहीं है। राइट? वो भी एक जब वो फाइल देखता है, उसको लगता है चीजें सारी ऑर्डर में है, उस वो भी आंसरेबल है, कहीं ना कहीं वो भी एक आंसरेबल है। उसको लगता है सारी चीजें तो ऑर्डर में है, एक्सपीरियंस हम्म। ऑर्डर में है, जॉब लेटर प्रॉपर है, एक्सपीरियंस लेटर प्रॉपर है, T4 लगाए हुए हैं, इसने इसने प्रॉपर पे स्लिप्स लगाई हुई हैं, इसने नोटिस ऑफ असेसमेंट लगाया हुआ है। एक एक छोटी छोटी चीज आपने, डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है ना। हाँ। और मुझे पता हम्म। है कई बारी तो हमारे जो क्लाइंट्स है ना, वो नाराज भी हो जाते हैं कि सर आप कागज बहुत इकट्ठे करवाते हो हमारे से। लेकिन हमारा बट प्रोसेस वही काफी। वही रिजल्ट देते हैं सर लास्ट में, हाँ, ये कि बात तो जो भी सच है। हमने डो। या। क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन हम्म। हमने प्रोसेस बहुत सिंपल बना रखा है। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें पर्सनली आके नहीं देना। राइट? यू हम्म। हैव टू अपने आप हमारी ड्राइव पे आप अपलोड कर सकते हो, सब कुछ वहां पर है, यू हैव द एक्सेस, एंड इजीली यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। सो अब और सबसे बेस्ट भी है सर आपका, मैं कभी भी कॉल करती थी, कोई भी कंफ्यूजन होता था आप तभी पिक कर लेते थे, लाइक तभी आपको मतलब सेटिस्फाई कर देते थे एक ही कॉल में कि हाँ ये करना है, ये नहीं क्योंकि करना, लाइक। एंजाइटी बहुत है, मैं समझ हम्म। सकता हूं, क्योंकि ये नहीं है कि फाइल लगाने तक, पहले तो फाइल पूल में डालनी, पूल के बाद हम्म। आईटीए आना, आईटीए के बाद एंजाइटी कि पीसीसी कब होगा। क्योंकि पीसीसी हाँ की स्ट्रगल बहुत है, राइट? ये खासकर बहुत है। इंडियन पीसीसी को लेकर बहुत स्ट्रगल है। सो पीसीसी कब होगा, डॉक्यूमेंटेशन, अपोलो हॉस्पिटल के आपके डॉक्यूमेंटेशन, वो हम्म। एक छोटी छोटी चीज है। मैं एक एग्जांपल सारे लोगों के सामने शेयर हम्म। करता हूँ कि विशाखा ने अपने जो फोटोग्राफ्स हैं, जो हॉस्पिटल के काम करते हुए के, कि मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ इनसाइड हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर, वो, और अपना इवन आइडेंटिटी कार्ड वो तक प्रोवाइड किया था। सो हमने कहा कि नहीं, हमें फाइल और स्ट्रांग करनी है, हमें और स्ट्रांग करनी है। हम्म। सो कोई गुंजाइश ना रह जाए। वैसे तो अपोलो हॉस्पिटल इटसेल्फ, द नेम इज सफिशिएंट, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना होगा कि वीजा ऑफिसर हम्म। ढूंढ नहीं सकता। लेकिन हमने उनको इतनी बारीकी से वो डॉक्यूमेंटेशन दी, इतनी स्मॉल, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स, राइट? जस्ट लाइक जो आपका गले में डालने वाला आई कार्ड था, उसकी कॉपी, पे स्लिप्स वगैरह तो सबने दी हैं, इवन द हम्म। फोटोग्राफ्स that you were there in the hospital working with the doctors alongside the doctors along with the hospital। तो वो छोटी छोटी चीजें यहाँ की भी, इवन हियर इटसेल्फ हमने यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिटेल में वो सारी पकड़ाई। सो ये चीजें डू पे ऑफ, राइट? बिकॉज व्हेन वीजा ऑफिसर लुक्स इनटू ऑल दीज थिंग्स, उसको लगता है नहीं, उसको कॉन्फिडेंस होता है, वो कहता है हाँ फाइल हम्म। ठीक है।
फाइन गुड है। तो वो चीज थ्रू थ्रू निकल जाती है, उसमें कोई पीएफएल, एडीआर, कोई किसी किस्म का रिफ्यूजल, कोई चीजें होने की। सो बस थोड़ी मेहनत जरूर है, वो वहां पर मेहनत है। एंड इट दैट मेहनत जो है ना आपने करी है, वो पे ऑफ करती है। आपने, हमने, सबने मिलके जो ये मेहनत करी है, वो पे ऑफ बहुत जबरदस्त करती है। हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितना डिफरेंस लगता है जब एक टेम्पररी रेजिडेंट होता है और एक पीआर होता है। व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, या उसमें क्या डिफरेंस है, प्रेस्टीज में क्या डिफरेंस है, कैसा आपको फील कैसा होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ऑफकोर्सली बूस्ट तो होता है, क्योंकि टेम्परेरी है, हमारे पास एक टैगलाइन होती है कि इस टाइम पे हमें कंट्री छोड़ देना है सर। हम्म। तो वो भी क्योंकि अब हम लाइक मैं एज ए स्टूडेंट भी आई हूँ, देन फिर वर्क परमिट, तो इतने साल एक कंट्री में रह के फिर ऐसा लगता है कि हाँ अपना सा घर है, तो फिर एक टैगलाइन रहती है, तो ये तो अब जाना भी पड़ेगा। हम्म। तो वो पीआर आने के बाद वो थोड़ा रिलीफ हो जाता है कि चलो एक घर, एक और घर है हमारा अब कि हम रह सकते हैं यहाँ पे आराम से। अच्छा, पीआर के साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं, बिकॉज हम्म। टेम्पररी रेजिडेंट अब अगर आप होते हो तो आपसे एम्प्लॉयर सबसे पहले पूछता है कि वर्क परमिट कब खत्म हो रहा है। ये यस क्वेश्चन सर। तो जरूर पूछा जाता है कि वर्क परमिट कब खत्म हो रहा है। लेकिन जब क्योंकि आप आप कहते हो पीआर हूं, हम्म, तब ये क्वेश्चन तो नहीं है। क्योंकि समटाइम्स लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक सिर्फ पीआर या सिटीजन के लिए ही है, ट्रू। या फिर हमारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है, तो हम जॉब स्विच करने में भी थोड़ा सोचते हैं कि लाइक वो बोलेगा कि 6 मंथ्स के बाद आपका तो वर्क परमिट खत्म हो जाए, तो वाई वी हायर यू। तो वो बिल्कुल। भी सर एक वो रहता ही है कि वो हमें। क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त एक क्वेश्चन है हम्म। कि भाई आपका तो 5 महीने में, 4 महीने में वर्क परमिट खत्म हो रहा है, हम आपको हायर करके हम्म। करेंगे क्या? जब तक हम आपको ट्रेनिंग देंगे, चीजें यस सर। समझाएंगे, तब तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो हमारे हम्म। दैट थिंग ऑल्सो, प्लस एक और चीज है विशाखा, कभी अगर विचार बनता है पढ़ने का, राइट, सो यू कैन नाउ स्टडी एज अ लोकल स्टूडेंट। यस सर। जो कोर्स आपने पैलेटिव केयर का ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट किया था, 1/3 या 1/4 कॉस्ट में वो सेम कोर्स कर सकते हो। सेम कोर्स, यस सर। तो अगर कभी आगे कोई पढ़ने का विचार बने, हम्म। राइट, विच यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ, राइट, बीएससी नर्सिंग है, कल को एमएससी नर्सिंग है, अगर कुछ भी और फर्दर इसमें करना है, तो देन यू कैन स्टडी एज अ लोकल स्टूडेंट। सो ये यस सर। एडवांटेज हमेशा होती है कि अगर मुझे आगे पढ़ना है। और डेफिनेटली सर। एक और हमेशा एडवांटेज आपके साथ हमेशा रहेगी कि एज अ टेम्पररी रेजिडेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल योर पेरेंट्स और एनीबडी एल्स। कभी उनको बुलाओ, वो कहेंगे कि भाई तुम्हारा अपना तो ठिकाना है नहीं, हम्म। तुम किसी और को कैसे बुला सकते हो? राइट, सो दैट इज द रीजन। राइट पहले सर। होता था कॉन्वोकेशन पे ना लोग बुला लेते थे, कॉन्वोकेशन का हम्म। बहाना लगा के कि मेरी कॉन्वोकेशन है, मेरे पेरेंट्स को वीजा मिल जाए। आजकल नहीं मिलता। राइट, आजकल तो ये सिस्टम है कि अगर आपके पास डेफिनेटली, इफ यू आर अ पीआर, यू आर अर्निंग, राइट, यू कैन शो, आप सीधा सुपर वीजा अप्लाई करो, आपके पेरेंट्स को सुपर वीजा मिलता है। सो यू कैन स्पॉन्सर योर ब्रदर सिस्टर, यू कैन स्पॉन्सर योर पेरेंट्स। ये चीजें, एक का रास्ता खुलता है तो पीछे पूरा पूरी सबके लिए फैमिली। सबके लिए, यस। पूरी फैमिली के लिए अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली यस सर। राइट, प्लस प्लस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रदर सिस्टर होते हैं, राइट, ब्रदर सिस्टर्स हैं या सिस्टर्स और पीछे और सिबलिंग्स हैं। तो अगर कोई और सिबलिंग पीछे होता है, तो 15 पॉइंट सिबलिंग के भी मिलते हैं। तो उसको जो दूसरा जो पीछे आ रहा होता है, मैंने मैंने कई ऐसी फाइल्स करी हैं जिसमें हमने एक एक घर से तीन 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 तीन, दो दो, तीन तीन करे हैं। ब्रदर सिस्टर वाले तो बहुत केसेस हमने किए हैं, सिस्टर सिस्टर वाले, ब्रदर सिस्टर वाले, दो ब्रदर्स के बड़े भाई का केस किया, तो छोटे को 15 पॉइंट फ्री में मिलते हैं। तो ये चीज, ये डेफिनेटली जो आने सिबलिंग्स जो होते हैं, फिर उनको कॉन्फिडेंस भी होता है कि मेरी बहन पीआर है, तो मेरे को कम से कम रहने का कोई ठिकाना, कोई मुश्किल नहीं। कहीं मेरे हाँ को जी। सपोर्ट की जरूरत है, मेरे को सपोर्ट पूरी मिलेगी। मुझे कल को पढ़ना है, मुझे सपोर्ट पूरी है। सो ये एक दूसरे की हेल्प है ये। एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है आपको, और वो एडवांटेज पता क्या है? वो एडवांटेज है सिटीजनशिप में। 1 साल जो हाँ। आपने ऑलरेडी लगाया वो काउंट हो जाएगा। सो सिटीजनशिप आप बड़ी क्विकली अप्लाई कर सकते हो। कैनेडियन पासपोर्ट यू कैन अप्लाई वेरी हम्म। क्विकली। सो वो जो टाइम पीरियड है 3 साल वाला, वो कम हो जाता है। वो बहुत तो बड़ी वो एडवांटेज। या कल को आप राइट सर। सिटीजनशिप अप्लाई करते हो, हम्म। सिटीजनशिप में आपको, सो ओवरऑल आपको हाउ वाज द एक्सपीरियंस, राइट? हम लोगों का, आपने कुछ चीजें तो बताई, राइट, वी ट्राई टू हेल्प एज मच एज वी कैन, राइट, ट्राई टू डॉक्यूमेंट द थिंग्स जहां जहां जरूरत है, बताते हैं।
राइट? ओवरऑल व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? अगर आप खुद करते, हाउ वाज द डिफरेंस? अगर हमने आपके लिए ये सब कुछ किया, हाउ वाज द डिफरेंस यू फेल्ट? सर ऑब्वियसली डिफरेंस तो होता ही अगर मैं खुद करती और आपसे कराया, क्योंकि आपने स्टडी की है इमिग्रेशन की, तो आपको लाइक डेफिनेटली यू नो कि क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसेस है। और आप इतनी सारी फाइल्स भी लगाते, तो यू नो कि वो क्या कमी निकाल सकते हैं इस फाइल में, क्या नहीं निकाल सकते, राइट? क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू केस होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सभी का केस डिफरेंट होता है, राइट सर? सो यू नो बेटर कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगी, क्योंकि आपने पहले प्रोफाइल चेक कर लिया, तो यू नो कि कौन, क्योंकि पीआर की भी सर लाइक बहुत सारी स्ट्रीम्स है, सो यू नो बेटर कि किस स्ट्रीम में कौन सी एलिजिबिलिटी किस केस की बन रही है। सो मेरे केस में यू नो बेटर कि ये वाली एलिजिबिलिटी थी, इस स्ट्रीम में आपका जाएगा। तो आपने वो सब गाइड किया, क्योंकि हम कितना जैसे लाइक आई डिडंट स्टडी, राइट? सो आई डोंट नो मच जिसका जो अबाउट इट। डिपार्टमेंट होता है, राइट, आपका हाँ, सो डिपार्टमेंट वही जानते नर्सिंग है, यू आर चैंपियन इन नर्सिंग, राइट? हम आपको नर्सिंग नहीं सिखा सकते, हैं। राइट? राइट। दैट इज फॉर श्योर। सो यू आर चैंपियन इन दैट, यू स्टडीड फॉर दैट, यू डिड योर स्टडीज, यू डिड। आपने इंडिया में काम किया और वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में काम किया, यहाँ पर काम किया। सो यू नो, राइट, यू नो स्मॉल स्मॉल टिप्स। जैसे अब छोटा बच्चा है, उसको नीडल अगर लगानी है तो बेबी नीडल लगानी है, एक छोटी सी चीज है, राइट। राइट? छोटी उसको सी, यस। उसको बड़ा कैनुला नहीं लगा देना, उसको सो ये चीजें, कुछ चीजें प्रैक्टिकल काम करके आती हैं। सो यस सर, वही चीजें डेफिनेटली। इमिग्रेशन में हैं। हम इतनी फाइलें देखने के बाद ना, हम लोग एक मिनट में समझ जाते हैं कि ये कहाँ खड़ा है, इसका कहाँ थ्रू होना है, कहाँ नहीं होना, इसकी पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है। तो वो बहुत जल्दी, और कहाँ पर गलती हो सकती है, ये एक बहुत, राइट। या वीजा ऑफिसर आजकल क्या देख रहा है, उसको क्या चीज पे पिन पॉइंट करेगा, तो वो मौका ही ना दें। कोशिश, जैसे आपके केस में हमने एक जब डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करी, तो आपने कहा कि वो मुझे आइडेंटिटी कार्ड की क्या जरूरत है, मैंने कहा नहीं, वो भी दो, मुझे दो, राइट, आई नीड दैट, एंड वी पुट दैट, राइट, फोटोग्राफ्स हमने लगाई साथ में। सो दैट मेक्स सो मच हाँ जी, कॉन्फिडेंस कि बिल्कुल, यस। ठीक है, सैलरी स्लिप अपनी जगह है, राइट, आपके जो इंडिया के मेरे ख्याल से इनकम टैक्स आईटीआर कहते हैं, जो आईटीआर है वो अपनी यस। जगह है, फॉर्म 16 दिया वो अपनी जगह है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स हैं और जो आइडेंटिटी कार्ड है अपोलो हॉस्पिटल का, वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। राइट सर। सो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, एंड आई ऑलवेज से, यू नो, ईच केस इज यूनिक, कभी एक केस दूसरे केस के बराबर हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि नहीं, विशाखा ने नर्सिंग करी है तो कोई और कोई नर्सिंग करेगा तो उसका केस आइडेंटिकल, हम्म। इट कुड बी सिमिलर बट इट इज नॉट सिमिलर आइडेंटिकल। बट इंडिविजुअल एकदम डिफरेंस, एकदम यस। नहीं सेम हो सकता, ये सिमिलर हो सकता है, एंड दिस इज द फैक्ट, राइट? सो अब यस सर। आगे आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, लाइक जो नया एप्लीकेंट है, या जिसका आईटीए आता है या जिसका आईटीए नहीं आ रहा? सो तीन अलग अलग सिचुएशंस है, एक वो जिसका, जो बिल्कुल नया एप्लीकेंट है, जो पूल में भी पूल फाइल डालना हम्म। चाहता है या पीआर अप्लाई करना चाहता है, एक वो जो जिसका आईटीए आ चुका है, उसको क्या सजेशन देना है, और एक वो जिसके अभी अभी प्रोसेस शुरू किया है इमिग्रेशन का? लाइक सबका वैसे केस तो सर डिफरेंस है, बट लाइक मेरी सलाह तो यही रहेगी कि यू शुड बी गो विद द इमिग्रेशन कंसल्टेंट, द गुड हम्म। वन, जिसके पास नॉलेज हो। क्योंकि वही सर सेम बात है कि सबकी फाइल अलग है, सबका केस अलग है, राइट? तो अगर स्मूथ जर्नी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर कर लिया, स्टिल वी नीड की मोटिवेशन, राइट? एक मेंटल हेल्थ भी जरूरी होती है, क्योंकि सर स्ट्रेस काफी होता है, प्रोसेस बहुत, क्योंकि लंबा है, बहुत राइट? कई ज्यादा। बार टाइम भी लग जाता है, राइट? और सो खासकर तब, बिकॉज यू नो टाइम इज रनिंग, वही 3 साल है, राइट, वो तीन तीन साल है, साल है, उसके यस सर। अंदर अंदर 3 साल के अंदर अंदर आपको पीआर करना है। वो पीआर चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू करो, या किसी पीएनपी के थ्रू करो, या कोई पायलट प्रोग्राम के थ्रू करो, बट टाइम राइट वही सर। 3 साल है। तो हाउ डू यू गेट थ्रू दैट 3 इयर्स पीरियड? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो 3 साल के बीच बीच में मैं पहुंच जाऊं। सो मुझे इवन तो, सर लाइक, राइट सर, राइट। मुझे वो भी याद है जब आप एक्चुअली मिले थे, देन वी नॉट इवन हैड योर फाइल इन द पूल, तभी भी अभी 1 साल का एक्सपीरियंस भी पूरा नहीं हुआ था। नहीं यू, सर, तभी पूरा नहीं होता। या नो सर, तब पहली मैंने बार सिर्फ जब मेरे स्टार्ट से ही किया मिलने था आए उस थे आप? टाइम पे, राइट? यस सर। उस टाइम पर शायद 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस था बस टू मुझे, मैं मंथ्स का। स्टार्ट ही किया था, लाइक मेरा पीजीडब्ल्यूपी आया ही था उसी टाइम पे सर। एग्जैक्टली, मुझे वो उस वक्त बिल्कुल याद है, मेरे ख्याल से हम्म। 2 महीने हुए थे, पीजीडब्ल्यूपी आया था, एंड देन यू यस सर। केम इन फॉर कंसल्टेशन, कि मैं
ये स्ट्रीम क्यों, कौन सा स्ट्रीम ले सकती हूँ, किस में मुझे इजी पीआर मिल जाएगा। मैंने कहा ये आप पकड़ो। एंड फिर हम लोगों ने ये बात करी थी कि इंग्लिश का कितना टारगेट होना चाहिए, कौन सा। देन आई टोल्ड यू राइट, इट्स बेटर टू गो फॉर सेल्फ रादर देन सेल्फ आइल्स। प्रिपेयर्स। तो आपने कहा कि आइल्स तो मैंने पहले दिया हुआ है, मुझे वो भी याद आ गया ये बात कि आइल्स तो मैंने पहले दिया है, मैं आइल्स ना दूं। मैंने कहा नहीं, सेल्फ पिप दो, सेल्फ पिप में स्कोर ज्यादा आ जाएगा। सेल्फ पिप जो है थोड़ा सस्ता भी है, रिजल्ट भी जल्दी देता है, और स्कोर भी अच्छा आ जाता है। तो यस सर। सो और आप किसी और कोई और सजेशन आप नए एप्लीकेंट को देना चाहते हैं, अदर देन कि यस यू टेक द सर्विसेज फ्रॉम द इमिग्रेशन कंसल्टेंट, बट व्हाट एल्स यू कैन सजेस्ट कि क्या करें, किस चीज पे फोकस रखें ताकि वो पीआर तक पहुंच सकें। सर फोकस तो आई डोंट लाइक वांट टू पुट यू डिफरेंट। ऑन द स्पॉट राइट, मैं मुझे बट मैं ये आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि क्या आपको क्या लगा, व्हाट थिंग्स क्लिक्ड राइट, व्हाट थिंग्स क्लिक्ड एंड व्हाट थिंग्स दोज पीपल कैन डू। मैं जैसे आपके केस में मेरे को पता है आपने जो बहुत मेहनत करी डॉक्यूमेंटेशन में, आई राइट कीप सर। टेलिंग कि ये इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो। डॉक्यूमेंटेशन में हमने बहुत मेहनत करी। व्हाट एल्स यू कैन सजेस्ट टू अ न्यू एप्लीकेंट। तो फॉर द न्यू एप्लीकेंट लाइक स्टार्टिंग से ही जैसे वर्क परमिट आए तभी अगर पीआर लेना है तो देन दे विल फोकस ऑन दैट कि हमें ये वाला डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करना है, कौन सी जॉब हमें लाइक कई बार होता है कि हम 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस अपना ले लेते हैं किसी और फील्ड में हमारा वो, और वो अभी कैटेगरी भी नहीं हो जैसे वेरी गुड, पीआर की, वेरी राइट गुड, दिस सर। इज अ एक्सीलेंट सजेशन। विशाखा, इससे बेटर सजेशन कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपने बिल्कुल सही बात करी, और मैं डेली ये चीज देखता हूँ। मैं हम्म। आपके मुंह से सुनना सुनना चाहता था ये। सो ये डेली क्या होता है, मेरे पास लोग आते हैं, मेरा जी 2 महीने का वर्क परमिट रह गया, मेरा हम्म। 1 महीने का वर्क परमिट रह गया, कुछ करो। सो मेरे को ये कहना पड़ता है कि लाइक यू कम टू मी एट अ एंड स्टेज, तुम्हारे पास इतना टाइम था, पहले आओ, राइट, सो यू कैन प्लान कि क्या राइट। करना है, कौन सा पाथ चुनना है। यू ऑल्सो केम अर्लियर राइट, जस्ट आफ्टर टू यस मंथ्स सर। राइट। अभी उस टू वक्त मंथ्स 2 महीने यस। का एक्सपीरियंस हुआ था, यू सेड मैं कंटिन्यू करूं, मैंने कहा बिल्कुल कंटिन्यू करो। सो ये जो चीज है ना कि आप पहले एक, once you start on your work permit, even before your work permit, right, I would definitely suggest that is the right time to come, कि उस वक्त आओ एंड उस हम्म। वक्त अपनी प्लान करो कि मैं ये प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग है, किसी को हो सकता है राइट सर। ओंटारियो से पीआर ना मिल रहे, या उसको हम्म। नॉर्दर्न ओंटारियो जाना पड़े या अटलांटिक जाना पड़े, तो एटलीस्ट उसके पास प्लानिंग का, वो एग्जीक्यूशन का टाइम हो, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, जिस तरह आपने जॉब्स चेंज करी, कनाडा में भी जॉब चेंज करी, बट यू राइट सर। राइट कि आपके पास हर जॉब का प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो। प्रॉपर डो। यस ये यस एक सर। चीज डेफिनेटली आई लाइक इट, दैट यू व्हेन आई कीप सेइंग मुझे ये चाहिए, हाँ मेरे पास है मैं देती हूँ सर, ये हाँ मेरे पास है, मैं ये प्रोवाइड कर देती हूँ। सो आई कीप टेलिंग कि नहीं, मुझे मुझे वहां का T4 चाहिए, हाँ मेरे पास है हम्म। T4, राइट, मेरे पास पे स्लिप सारी रखी है। सारी यस सर। मुझे आज भी वो याद है कि आई यू सेड कि मेरे पास पे स्लिप तो सारी रखी है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार हम लोग इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, जॉब लेटर नहीं लेते, एक्सपीरियंस हम्म। लेटर नहीं लेते, पे स्लिपें पूरी नहीं होती, T4 नहीं होता, और फिर हम जब वापस उस एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं जानता देन वो तुम्हारे मना कर, को, राइट मैं सर। नहीं जानता तुम्हारे को। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है। बट यस या सेल्फ आप प्रिपरेशन भी डॉक्यूमेंटेशन की यस सर डेफिनेटली करनी चाहिए सेल्फ प्रिपरेशन, राइट। बिल्कुल आपको अपनी जो सेल्फ प्रिपरेशन है डॉक्यूमेंटेशन की, वो डे 1 से करो। डे 1 से, जब आप कनाडा में लैंड करते हो, डे 1 से आप स्टडी परमिट, आपका वर्क परमिट, आपने जो स्टडी करी, जो डिग्री ली, जो ट्रांसक्रिप्ट है, एक एक चीज, राइट, यू हैव टू कीप कलेक्टिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही ऐसी चीज है जो वीजा ऑफिसर के पास जानी है। राइट। तो अच्छा ही हो कि मुझे, आपको या मुझे ना जाना पड़े। वैसे वो राइट। कॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ना ही कॉल करे तो अच्छा है, नहीं तो अच्छा, right? यस So सर। that's true. So thank you so much, Vishakha, and it's so lovely to have you. All the best wishes for थैंक यू your सो मच future सर। success in Canada. हम चाहेंगे कि आप और तरक्की करें यहाँ कनाडा में, and look forward to helping you again during the citizenship time. ठीक है? यस सर डेफिनेटली सर, थैंक यू ओके, सो मच सर फॉर टेक योर केयर, ऑल हेल्प। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मोटिवेटिंग सो मेनी अदर्स। क्योंकि जो आपके, आपने जो वर्ड्स कहे, जो आपने चीजें कही, ये कितने लोगों को एनकरेजमेंट। आज की डेट में ना मेन प्रॉब्लम ये है
कि लोग डीमोटिवेट इतना ज्यादा हो चुके हैं, हम्म। नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त नेगेटिविटी हो चुकी है। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होना, बस चलो इंडिया वापस जाना पड़ेगा। सो वो नेगेटिविटी और डीमोटिवेशन, एक जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट है ना, जो अपनी जर्नी शेयर करता है, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू।